Hello students, welcome to online classes of Maharshi Public School. I am Mrs. Veena Deshmukh. In this video, we will see the GK. Okay, so you should take your GK book and open your page number 5. There is the first topic on this page. Okay, let's color the canvas. This is the name of the first topic. Okay. Painting are the best way of expressing one's feelings, and you know students, painting is the best hobby. Okay, and through painting we can express our feelings also. So paintings are the best way of expressing one's feelings. Some of the paintings have gained tremendous popularity all over the world, and कुछ paintings ऐसी है कि वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुई है among the whole world. Okay, a few of them are shown below, and कुछ paintings यहाँ पे शो की हुई है. Okay, and we have to match the names of the painters to this painting here. Okay, which is the first painting, the walk to Emmaus. And who is the painter of this painting? There are the name of the painters here. Lelio Orsi, that is the name of first पेंटर. ओके, जो फर्स्ट पेंटिंग है उसके पेंटर का नाम क्या है? लेलियो ऑर्सी. गॉट इट. देन सेकेंड पेंटिंग, द लास्ट सुपर, that is the second painting. Okay, who is the painter? What is the name of the painter of second painting? Leonardo da Vinci. Okay, that is the name of the painter of second painting. Got it? Then third painting, the name of the third painting is here, the Hay Van. Okay, who is the painter of this painting? John Constable. Okay, 1 minute. John Constable, that is the name of the painter of this third painting. Then fourth painting, which is the fourth painting here, Madonna of the Chancellor Relin. Okay, that is the fourth painting. Who is the painter of this painting? Jan van Eyck. Okay, the name of the painter here of a fourth painting. Okay, then fifth painting, whose is this? The name of the painting is here Sunflower. Okay, that is the fifth painting. Okay, whose is this painting? Vincent van Gogh. That is the name of this painter. Okay, then sixth, the child's bath. Okay, then who is the painter of this sixth painting? Mary Cassatt. Okay, last name. Then seventh, what is the name of this painting here? The Weeping Women. Who is the painter of this painting? Pablo Picasso. Where is the name here? That is the name of this painter, Pablo Picasso. Okay, then eighth painting. What is the name of this eighth painting? The Flute Concert. Who is the painter of this eighth painting? Adolphe Menzel. 1 minute.
That is the name of this painter of 8 painting. Okay. Then ninth, the school of Athens. What is the name of the painter of this painting here? Raphael. Okay. First name. Okay. Now this topic is completed here on next page. Page number 6. There is the next topic. Okay. Danger in water. There are a large number of animals found in the oceans of the world, and students, there are many water animals, and these animals found in ocean. Okay, some of them have something special that makes people curious about them, and some water animals are very special, and that's why people makes curious about them, और इसीलिए लोग इनके बारे में जानने के लिए उत्सुक रहते हैं. Curious means उत्सुक. Okay. Identify these water animals. Now we have to identify the animals. There are the picture of these animals, and there is the information about these animals. We have to identify the name of these animals here, and we have to write down the name of these water animals here. Okay, that is the picture of this animal, and there is the information. Okay, this tiny fish is found in the South American rivers, and ये जो fish है ये बहुत ही small है. Okay, that is a tiny fish. Where is this found? In the South American rivers. Okay, it can enter into the human body. अगर ये ह्यूमन बॉडी में एंटर होती है, एंड कॉज डेथ अनलेस इट इज सर्जिकली रिमूव. अगर सर्जिकली ये रिमूव नहीं की तो यहाँ पे डेथ भी होती है. गॉट इट. व्हाट इज द नेम ऑफ दिस फिश हियर? देयर आर द नेम of animals given on next page, page number 7. Okay, among these name, what is the name of first picture? Kangaroo fish. Okay, what is the spelling of this kangaroo? Candiru. Okay, then next animal, second. Okay, this is the picture of second animal. It is found in the South Pacific Ocean and Indian Ocean. कहाँ पे मिल रहा है ये? साउथ पैसिफिक ओशन में एंड इंडियन ओशन में. इट हैज़ अ पॉइजनस barb which causes paralysis and in some cases even death. और ये जो एनिमल है, वाटर एनिमल, इसको पॉइजनस काटा रहता है. बाब मीन्स टीथ और काटा. ओके, विच कॉजेज पैरालिसिस, और इसकी वजह से पैरालिसिस भी हो सकता है ह्यूमन बॉडी को, एंड इन सम केसेस इवन डेथ. एंड कुछ ऐसी केसेस है कि यहाँ पे डेथ भी हुई है. ओके, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस एनिमल हियर? अगेन वी हैव टू गो ऑन नेक्स्ट पेज. देयर इज द नेम ऑफ दिस एनिमल, cone shell. Okay, CONE, cone shell. Got it? Next, third picture. That is a picture, okay, of this third animal. It is a small but very dangerous fish. और ये बहुत ही छोटी है लेकिन बहुत ही dangerous है. इट इज़ फाउंड इन द रिवर्स ऑफ साउथ अमेरिका. कहाँ पे मिल रही है ये हमें? साउथ अमेरिका के रिवर्स में. इट हंट्स इन अ ग्रुप्स, और ये ग्रुप में हंटिंग करती है. ओके, द ग्रुप अटैक ऑलमोस्ट ऑल क्रिएचर्स इन वाटर. और ग्रुपली अटैक होता है एनिमल्स पे, अदर एनिमल्स पे. ओके, इंक्लूडिंग ह्यूमन ऑल्सो. ह्यूमन पे भी ये अटैक करती है. इट्स अ ग्रुप कैन स्ट्रिप the prey to the bone in minutes.
एंड ये जो एनिमल्स है इन्हें अगर प्रे दिखता है तो ये 1 मिनट में ही उसे ख़त्म करते हैं. द नेम ऑफ दिस एनिमल इज़ हियर पिराना. द स्पेलिंग is on next page. That is the spelling of this animal, Piranha. Okay, next animal is here. That is a picture of this next animal, fourth number animals. Okay, it is also known as a box jellyfish. इसे box jellyfish भी कहा जाता है. It lives of the coast of Australia. ऑस्ट्रेलिया के कोस्ट में हमें ये मिलता है. Okay, it has a tentacles up to 9 meters longs, and this animal has a tentacles. What is mean by tentacles? These are the tentacles. Okay, and how many meters it's a long? 9 meters. Its venoms is as powerful as that of a cobra. और इसका जो पॉइजन है, वेनोम मीन्स पॉइजन, ये कोबरा के पॉइजन जैसा पावरफुल रहता है. इट्स स्टिंग कैन कॉज अ डेथ विद इन 3 minutes. अगर ये काटता है तो 3 minutes में ही डेथ होती है. ओके, द नेम ऑफ दिस एनिमल हियर सी wasps. ओके, spelling of these word SEACWASP, wasp. Okay, then next animal, fifth number. The picture of this animal is here. Certain parts of this fish contain a powerful nerve poison that can kill a human beings if eaten. And ये जो एनिमल है, ये जो फिश है पिक्चर में दी गई है वाइट कलर की. ओके, तो इसका कुछ पोर्शन ऐसा है बॉडी का कि ये पॉइजनस है. अगर हम इसे खाते हैं तो डेथ हो सकती है. ओके, इट इज़ ईटन इन जापान. कहाँ पे खाया जाता है? जापान. वेयर इट इज़ अ वेरी एक्सपेंसिव डेलिकेसी. बहुत ही एक्सपेंसिव है ये. ओके, एक्सपेंसिव मीन्स महंगा. मोर देन 50 people die in Japan every year after eating its incorrect parts. And in Japan yearly more than 50 people die. Okay, because of this fish. अगर इनकरेक्ट पार्ट खाया जाता है तो 50 के ऊपर जापान में डेथ होती है ईयरली. ओके, लोगों की जिन्हें पता नहीं कौन सा पार्ट खाना है और कौन सा नहीं खाना है, तो यहाँ पे डेथ हो सकती है बिकॉज ऑफ दिस फिश. व्हाट इट द नेम ऑफ दिस फिश हियर? पफर फिश. देयर इज द स्पेलिंग. See, PUFFER FISH. Okay, then next animal, animal number 6. That is the picture of this animal. It lies on the sea bed. कहाँ पे दिखेगा ये हमें? sea bed पे. There it resembles with rocks covered with seaweed. If a swimmer mistakenly steps on its back, he receives a painful sting from a spine. Its sting is reported to have killed human beings in a severe cases. अगर ये काटता है तो डेथ हो सकती है यहाँ पे. ओके, बहुत सारे लोग मारे गए हैं इसके काटने से. Which is this animal? Stonefish. What is the name of this animal? Stonefish. Spelling of this word here. Okay, first word. Now there are some MCQs. We have to solve these MCQs here. Pick and tick. First, which among the following is an expensive delicacy in Japan? There are 4 options: puffer fish, stonefish, kangaroo fish, sea wasps. First option is answer here. Okay, puffer fish ये जापान में मिलेगी and ये that is the very expensive delicacy. Then second,
Which among the following resembles seaweed? There are again four options: conch shell, stonefish, piranha, octopus. Second option is answer here, stonefish. Okay. Then third, which among the following can enter into the human body? Kangaroo, fish, sea bass, eel, cone shell. फर्स्ट ऑप्शन इज आंसर हियर कैंडीरो फिश. ये जो कैंडीरो फिश है ये ह्यूमन बॉडी में एंटर हो सकती है. ओके. देन फोर्थ, अ ग्रुप ऑफ विच ऑफ दीज कैन स्ट्रिप इट्स अ प्रे टू द बोन इन मिनट्स. देर आर अगेन फोर ऑप्शंस: एल, पिराना, स्टोन फिश, पपर फिश. पिराना इज द आंसर. ओके. Then fifth, which of these claims the life of almost 50 people every year in Japan? There are again four options: sea wasps, pufferfish, stonefish, and piranha. Pufferfish is answer here. Okay. Now on next page, page number 8. Okay. On next page, using brain. Okay. Page number 8. A few descriptions are given below about some common animals. They have the biggest brains in the whole animal kingdoms. There are some pictures of animals and given the information about it, and there are numbers also to this information where to match these numbers to the picture. Okay, picture of animals. A few descriptions are given below about some common animals. They have the biggest brains in the whole animal kingdoms. Okay. First number information. We have to read it. Two species of these mammal are widely recognized: Asian and African. And there are two species of this mammal, Asian and African. Its incisors grow big and they serve as tools to move objects and dig out earth. और इसके जो इंसिजर्स है टीथ ये बहुत बड़े बड़े रहते हैं एंड ये टूल्स जैसे वर्क करते हैं, जैसे ऑब्जेक्ट्स उठाना, जो अर्थ है ये भी डिग कर सकते हैं. ओके. इट कैन लाइव अप टू 70 years in wild. It communicates with other members of the same species by touch, sight and sound. और ये communicate कैसे करते हैं अपने other members के साथ? टचिंग से, sight and sound से. Okay. It is considered an intelligent animal as it is reported to have shown awareness and sympathy for dying or dead individuals of its kind. And इन्हें इंटेलिजेंट क्यों माना गया है? क्योंकि अगर इसमें से कोई भी मेंबर की डेथ होती है तो ये उसे सिंपैथी देते हैं और अवेयरनेस शो करते हैं वहाँ पे. ओके. इट्स अ ब्रेन वेट्स अराउंड 4783 grams. Which is this animal? Elephant. Okay. So we have to match this information to this picture of elephant. Okay. Now next information number 2. It has a well developed brain weighing around 1350 grams. And बहुत ही well developed brain है. And how many grams are weights here of this brain? 1350. Okay. It is capable of reasoning, problem solving, thinking and interactions through language. और ये बहुत ही capable है प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए, थिंकिंग सोच सकते हैं एंड इंटरेक्शन थ्रू लैंग्वेज, एक दूसरे के साथ बोल भी सकते हैं. इट इज़ अ कॉस्मोपॉलिटन स्पेसीज and has spread to every continent except अंटार्कटिका. और जो भी कॉन्टिनेंट्स है ऑन 7 कॉन्टिनेंट्स सभी तरफ हमें ये एनिमल्स मिलेंगे. ओके. एक्सेप्ट अंटार्कटिका, अंटार्कटिका को एक्सेप्ट करके. ओके. विच इज़ दिस एनिमल? दैट इज़ द
ह्यूमन बीइंग, ओके। सेकेंड नंबर, ये जो पिक्चर है ह्यूमन बीइंग का, यहाँ पे हमें सेकेंड नंबर लिखना है, ओके। देन थर्ड इंफॉर्मेशन, द average life expectancy of this animal is 40 to 50 years. It can run at up to 65 km in short bursts. Average weight of this animal's brain in is 762 grams. It is well suited to carry heavy loads across hostile landscape. That is the reason it is called the sheep of desert. That is the कैमल, ओके। कौन सा एनिमल है ये? कैमल। देयर इज अ पिक्चर ऑफ कैमल ऑन नेक्स्ट पेज, ओके। सो वी हैव टू राइट डाउन हियर 3 नंबर। देन नेक्स्ट इंफॉर्मेशन, फोर्थ, ओके। इट्स anatomy enables it is a make use of speed to escape predators. Predators means hunter, okay. It has a well developed sense of balance and it is able to sleep both standing up and lying down. And ये जो एनिमल है ये खड़े खड़े भी सो सकता है एंड नीचे सो के भी वो लाए होके भी वो सो सकता है, ओके। इट इंटरैक्ट with humans in a wide variety of sports competitions and बहुत सारे स्पोर्ट कंपटीशन में ये हिस्सा लेता है, ओके। इट हैज़ अ brain weighing around 532 grams. And which is this animal? That is a horse, okay. So we have to write down here 4 number on the picture of horse, okay. बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स में ये पार्टिसिपेट कर रहा है विथ ह्यूमन, ओके। एंड इट हैज़ अ वेल डेवलप्ड सेंस ऑफ बैलेंस ऑल्सो। एंड ये स्टैंडिंग में भी सो सकता है एंड और ऑन द लैंड ये बैठ के भी सो सकता है, ओके। Then next information, information number 5. Adults of this mammal do not have strong social bonds, though they gathered in loose aggregations if they happen to be moving in the same general direction. एंड जो अडल्ट है ये मैमल्स के, अडल्ट मीन्स मैच्योर्ड एनिमल्स, ओके। तो इनका जो सोशल बॉन्ड्स है ये स्ट्रॉन्ग नहीं रहता, फिर भी अगर कहीं सेम डायरेक्शन में मूव होना है तो ये कलेक्टिवली मूव होते हैं। सम सब स्पेसीज ऑफ दिस एनिमल्स आर क्लासिफाइड एंड एज एंडेंजर्ड, और कुछ ऐसे सब स्पेसीज है कि वो ख़त्म होने को आई है, ओके। Average weight of its brain is 680 grams. The structure of its brain resembles that of a domestic cattle. और डोमेस्टिक कैटल्स के जैसे इनका ब्रेन दिखता है, ओके। ब्रेन का स्ट्रक्चर जो है वो डोमेस्टिक कैटल्स जैसे दिखता है। विच इज़ दिस एनिमल? जिराफ, ओके। दैट इज़ अ 5th नंबर, ओके। जो इंफॉर्मेशन 5th नंबर की दी हुई है ये जिराफ के पिक्चर को मैच हो रही है, गॉट इट। देन 6, it is a large herbivorous mammal. It is the third largest land mammal by weight, okay. weight में ये 3rd नंबर पे है। During the day time it remains cool by staying in the water और मड, और दिन में ये मड में रहेंगे या वाटर में रहेंगे, ओके। इट्स अ ब्रेन वेट अराउंड 582 ग्राम्स। ब्रेन वेट कितना है? 582 ग्राम्स। डिस्पाइट इट्स stocky shape and short legs, it can easily outrun a human being, okay.
Its eyes, ears, and nostrils are placed high in the roof of the skull. Which is this animal? That is the hippopotamus. Okay. So you have to write down here 6 number on this picture. Okay. Then last information number 7. It is the most common type of large domesticated animal. ये बहुत ही कॉमन एनिमल है, डोमेस्टिकेटेड एनिमल. इट इज़ द हॉलीएस्ट ऑफ ऑल एनिमल्स फॉर हिंदूज. और हिंदू जो रिलीजन है यहाँ पे इसे होली एनिमल माना जाता है. हॉलीएस्ट है ये. ओके. होली मीन्स पवित्र. Every household in rural India tries to keep a few cattle as a constant supply of milk. और रूरल एरिया में सभी लोग ये चाहते हैं कि ये अपने घर में रखे जाए. फॉर व्हाट? फॉर मिल्क. ओके. इट हैज़ अ ब्रेन विच वेट्स अराउंड 442 ग्राम्स. और इसके ब्रेन का वेट कितना रहता है? 442 ग्राम्स. एंड विच इज़ दिस एनिमल? दैट इज़ द काऊ. ओके. Write down the 7 number on this picture of cow. Okay. Now students, today's topic is completed here. We will see one extra video after this topic. Okay. And you should get the knowledge through this video, and you will enjoy also. Okay. शार्क, मगरमच्छ, जहरीले सांप और पानी में रहने वाले अजगरों के बारे में तो सब जानते हैं, लेकिन दुनिया भर के नदी, तालाबों और समुद्रों में कुछ ऐसी मछलियां भी हैं जिनके सामने ये खतरनाक समुद्री जीव भी कुछ नहीं. हर साल करीबन हजारों की तादाद में लोग इन्हीं जानलेवा मछलियों की वजह से अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठते हैं. घर या ऑफिस के फिश पॉट में दिखने वाली खूबसूरत फिशेस और खाई जाने वाली कुछ आम मछलियों के अलावा हमारे आसपास और दुनिया भर में ऐसी कई घातक मछलियां पाई जाती हैं जो पलक झपकते ही अपने से 10 गुना बड़े जानवर को भी सीधा मौत के घाट उतार सकती हैं. कुछ मछलियां आकार में इतनी विशालकाय हैं जो एक बार में हाथी तक को निगल सकती हैं. कुछ इतनी छोटी कि हमारे पानी में पहुंचने पर हमारे नाक और कान के जरिए हमारे शरीर में आसानी से प्रवेश कर सकती हैं. समुद्र की गहराइयों में पाई जाने वाली इन मछलियों से ज्यादातर लोग अनजान होते हैं. तेज बिजली का झटका देने वाली मछलियां, जहर उगलकर अंधा बना देने वाली मछलियां और तेज दांतों से लोहे तक को चबा लेने वाली मछलियों से पानी में मौजूद सभी जानवर दूर रहना ही पसंद करते हैं. बीते कई सालों में ये डेंजरस फिशेस इंसानों पर भी हमला करती रहती हैं और कई स्थितियों में तो ये व्यक्ति के साथ साथ उसके कपड़े तक हजम कर गई. आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे नदियों और समुद्रों में पाई जाने वाली कुछ सबसे खतरनाक और जानलेवा मछलियों के बारे में जो अपने सामने आने वाले किसी भी जीव को नहीं बख्शती. स्टोनफिश. स्टोनफिश दुनिया के सबसे जहरीले जानवरों में से एक मानी जाती है. ये मछली खासकर एशिया के इंडो पैसिफिक रिवर में भारी तादाद में पाई जाती है. पानी के अंदर इस मछली को ढूंढ पाना एक बेहद पेचीदा काम है क्योंकि दिखने में ये पूरी तरह एक समुद्र में पड़े हुए पत्थर की तरह लगती है और इसी की वजह से इस फिश का नाम स्टोन फिश पड़ा. जो चीज इसे खतरनाक बनाती है वो है इसका पथरीला रंग एवं रूप और कई जहरीली सुइयों से भरी इसकी पीठ. जैसे ही कोई स्टोन फिश के नजदीक आता है या इसे छूने की कोशिश करता है तो इसकी रीढ़ पर मौजूद कांटे शिकार के शरीर में गहराई तक प्रवेश कर जाते हैं और फिर निकलता है इन कांटों में से भारी मात्रा में एक जानलेवा जहर जो कि कुछ ही मिनटों में शिकार के पूरे शरीर में फैल जाता है. इस मछली की सबसे खास बात यह है कि ये पानी के बाहर भी करीबन 24 घंटे तक जिंदा रह सकती है. ऐसे में कई बार समुद्र के किनारों पर या चट्टानों के बीच में ये दिखाई भी नहीं देती. इसलिए लोग अक्सर इसे पत्थर या समुद्री स्टोन समझने की गलती कर बैठते हैं और अनजाने में इसके ऊपर अपना पैर या हाथ रख देते हैं. स्टोन फिश में पाया जाने वाला पॉइजन इतना जहरीला होता है कि अगर किसी के शरीर में
ये प्रवेश कर जाए तो वो एक इमरजेंसी सिचुएशन बन जाती है और कुछ ही मिनटों में अगर इसकी ट्रीटमेंट नहीं की जाए तो हाथ या पैर काटना भी पड़ सकता है। इसके जहर की एक बूंद में ही इतनी ताकत होती है कि यदि इसे किसी शहर के पानी में मिला दिया जाए तो उस पानी को पीने वाले सभी लोगों की मौत भी हो सकती है। अपने आसपास के वातावरण में खुद को पूरी तरह छुपा लेने वाली इस फिश का रिएक्शन टाइम महज 0.15 सेकंड्स है, यानी कि एक बार पलक झपकने तक के वक्त में ही कोई भी इसका शिकार बन सकता है। इलेक्ट्रिक ईल। इलेक्ट्रिक ईल वास्तव में एक ईल नहीं बल्कि एक प्रकार की कैटफिश होती है। दक्षिण अमेरिकी नदियों में रहने वाली इन इलेक्ट्रिक ईल्स को पानी का सबसे जानलेवा जीव माना जाता है, क्योंकि इसे छूना मात्र ही किसी तेज बिजली के नंगे तार को छूने के बराबर होता है। करीब 2 मीटर लंबी ये मछली 600 वोल्ट का करंट मार सकती है, जो कि किसी भी जानवर या इंसान को सीधे मौत के घाट उतार देने के लिए काफी है। इलेक्ट्रिक ईल एक दूसरे को सिग्नल पहुंचाने और अपने शिकार को ढूंढने के लिए इलेक्ट्रिक वेव्स का इस्तेमाल करती है और इनके शरीर में पूरे समय इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता रहता है। लेकिन जैसे ही इन्हें अपने आसपास किसी भी प्रकार का खतरा महसूस होता है तो ये अपने साधारण इलेक्ट्रिक फ्लो को एक तेज शॉक में बदलने के लिए 10 गुना ज्यादा बढ़ा लेती है। पानी में रहने वाले मगरमच्छ जैसे खतरनाक जानवरों से लेकर जमीन पर रहने वाले शिकारी भी इस फिश से दूर रहना पसंद करते हैं, क्योंकि इसका महज कुछ सेकंड का स्पर्श ही शिकारी के पूरे नर्वस सिस्टम को बंद कर सकता है। हर साल कई जगह समुद्री किनारों पर और मछली पकड़ने वाले मछुआरों का जाने अनजाने इलेक्ट्रिक ईल से सामना हो ही जाता है और कई लोग इनकी वजह से अपनी जान भी गंवा देते हैं। पिरान्हा। सभी मछलियों की प्रजातियों में पिरान्हा मछली सबसे ज्यादा खूंखार और बेरहम मानी जाती है। बेहद गुस्सैल और आक्रामक स्वभाव वाली इन मछलियों के दांत बहुत ज्यादा नुकीले और जबड़े काफी मजबूत होते हैं। कहा जाता है कि ये पिरान्हा महज 30 सेकंड में ही इंसान की हड्डी तक को चबा सकती हैं। आकार में छोटी लेकिन बेहद जानलेवा इन मछलियों की करीबन 40 से 50 प्रकार की अलग अलग प्रजातियां पाई जाती हैं, जिनमें से लाल पेट वाली पिरान्हा मछली को सबसे डेंजरस माना जाता है। पिरान्हा मछलियां पूरे समय भोजन और शिकार करने के लिए तत्पर रहती हैं, इसलिए जन्म के दौरान अंडे से बाहर आते ही ये छोटे छोटे समुद्री जीव, फल और पौधों को खाना शुरू कर देती हैं। फिर थोड़े बड़े होते ही अपनी ओर आने वाली दूसरी मछलियों को ये जिंदा खाने लगती हैं। ये मछलियां ज्यादातर झुंड में रहती हैं और झुंड में ही शिकार भी करती हैं। पिरान्हा मछली के झुंड की तुलना एक तेज धार वाली कटिंग मशीन से की जा सकती है, जो कि देखते ही शिकार को मारती नहीं बल्कि उसे जिंदा ही बोटी बोटी करके खाना शुरू कर देती हैं। फिर चाहे इनकी चपेट में आने वाला व्यक्ति या जानवर कितना ही बड़ा और ताकतवर क्यों ना हो, अपने आप को नहीं बचा सकता। सन 2011 में ब्राजील में पिरान्हा मछलियों के हमले से करीब 100 से भी ज्यादा लोगों के घायल होने की खबर आई थी। वहीं साउथ अमेरिका के स्थानीय लोग पिरान्हा मछली के दांतों से हथियार और अलग अलग काम में आने वाले उपकरण बनाने के इस्तेमाल में भी लाते हैं। पयारा, द मोस्ट डेंजरस फिश। पयारा को वैम्पायर फिश के नाम से भी जाना जाता है और ये पिरान्हा से भी ज्यादा हिंसक होती हैं। इनके खतरनाक होने की वजह है इनके मजबूत जबड़े और बेहद तेज धार वाले दांत। इनके निचले जबड़ों में 2 बड़े आकार के नुकीले दांत होते हैं, जो मुंह बंद करने पर जबड़े के अंदर बने छेद में घुस जाते हैं। इन दांतों की पकड़ में जब कोई शिकार एक बार फंस जाता है तो फिर उसका बचना असंभव है, क्योंकि ये अपने जबड़ों में मांस को पूरी तरह लॉक कर लेती हैं। पूरी तरह से विकसित ये मछलियां करीबन 4 फीट तक लंबी हो सकती हैं। बेहद तेज दांत और सामने 2 बड़े बड़े जबड़ों के इस्तेमाल से ये अपने साइज से बड़ी मछलियों को भी आसानी से चीर फाड़ कर खा जाती हैं। पयारा ही एकमात्र ऐसी मछली है जो पिरान्हा जैसी खतरनाक मछली को भी हजम कर सकती है। मोरे ईल। ये मछली पूरी दुनिया में सबसे अलग तथा जानलेवा मछली मानी जाती है। वजह है इसके जबड़े। आमतौर पर किसी भी जानवर या मछली के पास जबड़ों का एक पेयर होता है, लेकिन मोरे ईल के शरीर में 2 जबड़ों के अलग अलग पेयर होते हैं। एक नुकीले दांतों से भरा जबड़ा बाहर की तरफ पाया जाता है और दूसरा मुंह के अंदर की गहराई में थ्रोट के नजदीक।
जब ये शिकार करती हैं तो पहले उसे बाहरी जबड़ों से पूरी ताकत से पकड़ लेती हैं। उसके बाद मुंह के अंदर मौजूद दूसरा जबड़ा शिकार को अंदर खींचने और चीर कर अलग करने का काम करता है। मोरे ईल छोटी तथा विशालकाय भी होती हैं और साथ ही ऐसा भी माना जाता है कि ये मछलियां पूरे के पूरे इंसान को भी निगल सकती हैं। हर साल समुद्र की गहराई में उतरने वाले कई गोताखोरों पर मोरे ईल अटैक करती हैं और इंसान के शरीर का भी जो हिस्सा इनके दांतों की चपेट में आता है, समझो उसका बचना असंभव है। कई लोग अपने हाथ, पैर, कलाई और उंगलियों को मोरे ईल के अटैक की वजह से खो चुके हैं। सॉफिश। इस मछली की प्रजाति बेहद दुर्लभ और अनोखी मानी जाती है। इसकी लंबाई 60 फीट से लेकर 20 फीट तक होती है। सॉफिश की लंबी नाक पर बहुत से नुकीले दांत होते हैं, जिसकी वजह से इसकी नाक किसी लकड़ी काटने वाली आरी या सौ की